الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بند کر پیچھے بند کر ایک منٹ چلاؤں گا ان جنت تحت ارجل امہاتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضرین محترم، اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ برادر مکرم بھائی محمد مزمل حسین سعیدی، بھائی محمد مدثر حسین سعیدی، ان کے والد مرحوم و مغفور مستری اسد اللہ سے مرحوم مغفور، جن کی دعائے بخشش اور مغفرت کے لیے ہم سب حاضر ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی تمام آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ ان کی مرقد پہ بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے انتقال کے بعد یقیناً بہت بڑی معاشرتاً آئلی اقتصادی تمام تر ذمہ داریاں ان کے سروں پہ ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کو ہمت اور قوت سے نوازے اور ان کے گھرانے کو اللہ آباد و شاد فرمائے۔ موضوعات بے شمار ہیں، اللہ رسول کی تعریف کے اتنے پہلو ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کی شان کا ایک پہلو ختم نہیں ہو سکتا۔ بھائی مزمل نے جو منقبت پڑھی ہے والد کی شان میں، تو موقع کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ چند باتیں اس موضوع پر میں بھی گوش گزار کروں۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں، زوال نعمت کے بعد انسان کو احساس نعمت ہوتی ہے۔ جب کوئی نعمت آنکھوں سے جدا ہو جائے، کوئی نعمت زائل ہو جائے، اس نعمت کے چھن جانے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کمر اتنا جھکی ہوئی تھی کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے زمین سے کوئی چیز چن رہے ہیں، یعنی اتنا جھک کے چلتے تھے۔ تو کسی نوجوان نے دیکھ کر طنزاً ان سے پوچھا مذاق کرتے ہوئے، بابا جی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی بڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا بیٹا میں اپنی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا الا لیت الشباب یعود، کاش یہ جوانی دوبارہ پلٹ کے آ جائے۔ تو اس نے کہا بابا جی کیا جوانی دوبارہ مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا اسی تو فکر میں ہوں کہ جب اللہ نے مجھے طاقتور بنایا تھا، میں نے زندگی لایانی فضول کموں میں برباد کر دی۔ اب جب میری کمر جھک چکی ہے اور میں کسی کام کے قابل نہیں رہا، تو اب میری آنکھ کھلی ہے کہ کاش میں کچھ عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا۔ شاعر کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ ذہن نشین کر لیں، دولت کی نعمت، صحت کی نعمت، فرصت کی نعمت، اور ان میں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی انسان کی نعمت ہے دنیا میں، وہ ماں باپ کی نعمت ہے۔ جب تک یہ نعمت آنکھوں کے سامنے ہو اس کا احساس نہیں ہوتا، جب یہ نعمت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ان کے جانے کے بعد یہ احساس دامن گیر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مکہ کی سرزمین فتح ہوئی، امام طبرانی نے الموجم میں اس کو نقل کیا ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، اور
और दुनिया जान से बदला लिया जाएगा, लेकिन सुन लो अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को रहमत बना के भेजा है। फज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ मैंने तुम सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दिया है। जो राह में कांटे भी बिछाए थे नबी रहमत ने उनको भी माफ कर दिया। और कहते नमाज की मगरिब का जब वक्त हुआ या बाइख्तिलाफ रिवायत असर की नमाज का वक्त, इकामत अजान कही गई, नबी रहमत मुसल्ले पे तशरीफ लाए। सैयद आलम ने पीछे मुड़ के देखा कि लोगों का जम्मे गफीर है जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए मुंतजिर है। हुजूर ये मंजर देख के आपकी चश्माने मुकद्दस में आंसू बह निकले। आपने फरमाया काश सहाबा आज इस फतह के मंजर में मेरी माँ जिंदा होती, काश आज इस मकाम पर मेरे वालिद कराम भी जिंदा होते, क्योंकि यही सरजमीन मक्का से जहां से लोगों ने मुझे हिजरत पे मजबूर किया, मेरी राह में कांटे बिछाए, मेरे पैगाम हक की तकजीब भी की, शेबे अबी तालिब की सख्त घाटी में मुझे महसूर भी रखा, मेरा दिल भी दुखाया। अल्लाह ने उसी मक्का की मुझे आज फतह नसीब की है। काश सहाबा मेरी जिंदगी के मुश्किल लम्हे भी कटे हैं, अगर मेरी माँ जिंदा होती आज मेरी जिंदगी की शान शौकत को भी देखती। सहाबा मंजर ये होता कि मैं मुसल्ले पे खड़ा तो मैं नमाज पढ़ाता और मेरी वालदा माजिदा हुजरे के पर्दे के पीछे से आवाज देती, इब्नी मोहम्मद ताल, बेटे मोहम्मद अरबी इधर आ जाओ। सहाबा में सूरह फातिहा छोड़कर अपनी माँ के बुलावे पे चला जाता। मैं नमाज में फातिहा पढ़ भी रहा होता तो उस वक्त में सूरह फातिहा को मौकूफ कर देता, अपनी माँ के बुलावे पे चला जाता। नबी रहमत से पूछा गया अय्यु नासी आज़मुन हक्कन अलल मरआ, आका औरत की रुखसती के बाद उस पर सबसे बड़ा हक किसका होता है? औरत की जब बहन की बेटी की शादी कर दी जाए, पूछा गया कि अब उसकी रुखसती के बाद औरत पे सबसे बड़ा हक किसका है? आपने इरशाद फरमाया ज़ौजुहा, उसके शौहर का। हुजूर अय्यु नासी आज़मुन हक्कन अलल रजुल, लेकिन मर्द पर किसका हक है? पूरी जिंदगी पूरी हयात मौत आने तक इंसान मर्द पर किसका हक है? फरमाया उम्मुहु, उसकी माँ का हक होता है। यानी ये बड़ा हसास मसला है और इस मसले की तरफ हम काफी गफलत का शिकार है। हमारे यहाँ ये म्यार नहीं है माँ बाप की मोहब्बतों उनकी उल्फतों के। हम जो फूल निछावर होते हैं जिंदगी के अयाम गुजरने के साथ साथ हम उन्हें भूल चुकते हैं। एक अल्लामा साहब कहते हैं मैं यूरोप गया, मैंने ओल्ड हाउस देखा। यूरोप वाले की तहजीब यह है कि वो बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं। वो कहते हैं अब खांसी ज्यादा है, बुढ़ापा है, रात को बोलते ज्यादा है, सोते नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं, हमारी नींद भी खराब होती है। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैं ओल्ड हाउस में को विजिट करने गया, मैंने एक औरत को देखा जिसकी 75 या 80 साल के लगभग कोई उम्र होगी। उसके हाथ में एक फूल का गुलदस्ता था, लेकिन फूल इतना पुराने थे कि अय्याम के गुजरने के दौर ने उन फूलों को जला दिया था, जल के काले हो चुके थे। इत्तवार का दिन था, लेकिन मैं करीब खड़ा देख रहा हूं उस बूढ़ी औरत की नजर दरवाजे पर है। मैंने उससे पूछा इंग्लिश में, जिसका आपको तर्जुमा मैं सुना रहा हूं, आप किसकी मुंतजर हैं? उसने कहा आज से 3 महीने पहले मेरा बेटा मुझे मिलने आया था, लेकिन 3 माह बीत गए हैं, मेरा बेटा मुझे मिलने नहीं आया। मुझे जब याद उसकी सताती है तो मैं उसके इन फूलों को उठा के चूम लेती हूँ कि और किसी के नहीं तो कम से कम ये मेरे बेटे के दिए हुए हैं। लेकिन हर इत्तवार के दिन मेरी नजर दरवाजे पे रहती है, काश मेरा बेटा मुझे मिलने आ जाए। लेकिन उस दीन की जो तालीम इतना नाकिस है, इतना नाकिस है कि वो बूढ़े माँ बाप से औलाद को जुदा करा देती है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम ये है। वही अल्लामा साहब कहते मैं जब स्टेशन पे एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ एक बूढ़ी औरत है जिसने पैंट शर्ट पहन रखी है, वो अपने बैग से सेब निकालती है, सेब को खाना चाहती है, लेकिन दांत ना होने की वजह से उससे सेब तोड़ा नहीं जाता। मैं करीब बैठ गया, मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कहते उसने एक मोहब्बत भरी नजर मुझे देखी, फिर सेब मुझे दिया, मैंने अपने हाथों से तोड़ा और देर कर उसे एक काश एक टुकड़ा दिया। उसने भी एक टुकड़ा खाया था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा आप रोती क्यों हैं? उसने कहा अल्लाह ने मुझे सारा खानदान दिया, बेटे बेटियां सब है, लेकिन इतना सालों के बाद आज किसी ने आके मुझसे मोहब्बत से बिछकोई आया है। मैं तड़पती हूँ, मेरा हाल कोई नहीं पूछता, लेकिन बेटे तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि जिस मजहब का मैं पैरोकार हूँ, मेरे मजहब की तालीम यही है कि छोटों पे शफकत करो, बड़ी की इज्जत करो।
बल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, ये छोटे पे शफकत नहीं करता, बड़े की इज्जत नहीं करता, नबी रहमत ने फरमाया उसका ताल्लुक मिल्लत इस्लामी से नहीं हो सकता, तुम रहम करो। उसने कहा बेटे तुम किस मजहब के पैरोकार हो? तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं दीन इस्लाम का पैरोकार हूँ। उसने कहा बेटा दीन इस्लाम का नाम सुनती थी लेकिन आज इस्लाम को आंखों से देख रही हूँ, मेहरबानी करो, मुझे तुमने ये काट के तो खिलाया तोड़ के, मेहरबानी करो मुझे कलमा पढ़ा के अपना दीन भी कबूल करवाते जाओ। अखलाकी हसना ने उस 75 या 80 साला बूढ़ी औरत को जो जहन्नम का सफर कर रही थी, उस अल्लामा साहब के अखलाक ने उसे जन्नत के रास्ते पे चला दिया। अगर वो कुफ्र में मर जाती तो जहन्नम मिलती। इसलिए मोहब्बत अव्वलीन हक है मोमिन का अव्वलीन हक है कि मुआशरे को मोहब्बत दी जाए, बड़ों की इज्जत की जाए। हजरत अली को किसी ने देखा, कहते राई तो अली युकब्बिलहु यदल अब्बास व रिजलई, हमने हजरत मौला कायनात को हजरत अब्बास जो मेरे हुजूर के भी चचा हैं, हजरत अली के भी चचा हैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कहते हमने मौला कायनात को हजरत अब्बास के हाथ भी चूमते देखा, पांव भी चूमते देखा है। और आप हजरत अब्बास को अपने बाप के मकाम पे जानते थे, अपने बाप के मकाम पर। लेकिन बदकिस्मती है आज मुआशरे की, आज जो नाकिस तालीम में है हमारे मुआशरे की, जो कुछ हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कुछ सिखा रहे हैं, उन चीजों ने माँ बाप को दूर कर दिया है मोहब्बतों से। औलादें कहती हैं कि मैं तो 20,000 एक बंदे से मैंने पूछा अब्बू क्या काम करते हैं? उसने कहा फारिग रहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? गांव में। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? मैं तो खानपुर में रहता हूँ। मैंने कहा फिर आप उनको अपने करीब क्यों नहीं रखते? कि जी बस वो हालात की तंगी है कुछ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 माहाना भेज देता हूँ, बड़ा उनकी मैं खातिरदारी करता हूँ। मैंने कहा बड़ी अफसोस की बात है, अगर माँ बाप तेरे पैसे के भूखे होते तो बचपन में जब तू छोटा था अपने मुंह का लुकमा निकाल के तुझे ना खिलाते। इसलिए तेरे माँ बाप तेरे पैसों के भूखे नहीं है, माँ बाप तो तेरी कुर्बत को देखना चाहते हैं, मोहब्बत को देखना चाहते हैं। मुझे एक रिश्ता दुनिया में बताएं, सब्जी शऊर अहले इल्म बैठे हैं और समझदार हालो खिरत वाले बैठे हैं, मुझे एक रिश्ता बताएं, कभी ऐसा देखा है कि खाए शोहर लेकिन पेट बीवी का भरता हो, खाए बीवी लेकिन पेट शोहर का भरता हो, खाए दोस्त लेकिन पेट दोस्त का भरता हो, खाए रिश्तेदार लेकिन पेट रिश्तेदार का भरता हो। लेकिन ये माँ बाप है, खाती औलाद है लेकिन पेट माँ बाप का भर रहा होता है। एक भीख मांगने वाली औरत को तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, उसके हाथ 3-3 बच्चे साथ होते हैं, एक उंगली में, एक कांधे पर, एक पीछे अम्मा माँ कह के बो रहा होता है। वो भीख मांगने वाली औरत सारा दिन दरों पे जाकर एक एक पैसे की भीख मांगकर 3 बेटों को पाल लेती है। लेकिन आज 4 जवान बेटे अपनी बूढ़ी मां को नहीं पाल सकते, वो बाप को नहीं पाल सकते। नबी रहमत की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर इन्नी उबायु कालिल हिजरत वल जिहाद, आका मैं आपके दस्ते मुकद्दस पर हिजरत करना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ। किस बात कर? मुझे या तो हिजरत की इजाजत दे या जिहाद करने की। आपने फरमाया क्या माँ बाप जिंदा है? जी हुजूर माँ बाप तो हैं, लेकिन इन्ना अबी व उम्मी यबकियान, जब मैं घर से जुदा हुआ हूं ना, मेरे माँ बाप दोनों रो रहे थे। पूछा क्यों? हुजूर वो मुझे कह रहे थे बेटे तुम ना जिहाद पे जाओ ना हिजरत करो, इसलिए कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी खिदमत करो, हमारा सहारा बनो। क्या हुजूर मैं जिहाद करूं? आपने फरमाया फर्जे इलैहिमा, खबरदार वापस पलट जाओ, माँ बाप के पास वापस पलट जाओ। जिस तरह रोता छोड़ के आए हो ना, जाकर मोहब्बत की बातें करो। अगर माँ बाप मुस्कुरा पड़े, अल्लाह घर बैठे तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमा देगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। शायर कहते खुदा की खुदाई में सबसे जुदा है, जो ये रूठ जाए तो रूठे खुदा है, ये तोहफा है कुदरत का दरसे वफा है, ये सबके अंधेरों में जलता दिया है, कभी मुझको घेरा जो रंजो अलम ने, मेरी माँ मेरे वास्ते बन गई दुआ है। माँ दुआ बन जाती है। नबी रहमत ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्का फीहिन्ना, अल्लाह 3 दुआएं कभी रद्द नहीं करता। सुनते जाइए कौन सी दुआएं? फरमाया दावतुल मजलूम, गरीब मजलूम की दुआ। दूसरी फरमाया दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। व दावतुल वालिद लि वलदिही, जब बाप औलाद के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह बाप की दुआ भी औलाद के हक में रद्द नहीं फरमाता है। बाप हाथ उठाए तो अल्लाह तकदीरें बदल देता है। इसलिए सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा तावीज़ इंसान की माँ है। मैं मुर्शिद का मुनकर नहीं, मैं तो खुद अपने मुर्शिद के दर का गुलाम हूँ। मेरे गले में तावीज़ भी लटका है, लेकिन अपने भी है खफा, बेगानी भी है ना खुश मुझसे, कि मैं जहरे हलावत को कह न सका कंध। माँ बाप बूढ़े हो और बेटा कहे जी मैं तो पिकनिक मंगाने जा रहा हूँ,
बाप बूढ़ा हो, फालिज के मर्ज में मुब्तला हो, बेटा कहे मैं दाता साहब की दरगाह पे हाजिरी देने रहा हूँ, माँ बूढ़ी हो, अंधी है, चल नहीं सकती, बेटा कहे जी मैं तबलीगी गश्त में 40 दिन के चिल्ले पे जा रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह ये सारी इबादतें मुंह पे मार देगा, अल्लाह एक भी कबूल नहीं करेगा। नबी रहमत की बार कहते अस्तशीरु हो फिल जिहाद अना अब्तिल अजर मिन अल्लाह, आका मुझे इजाजत दें मैं जिहाद करके अल्लाह की रिजा हासिल करूं। आपने फरमाया अल्लाह का वालिदन, फी रिवायत उखरा अल्लाह का उम्मा हय्या, क्या तेरी माँ जिंदा है? काला नाम। फरमाया इल्ज़म रिजलहा फसम्बल जन्नह, फिर जा माँ के कदमों में रह करके आ जा। एक रिवायत है फफीहिमा फजाहिद, जा जिस जिहाद को तू तलवारों के साथ लड़ना चाहता है माँ के कदमों में रह कर सवाब अता फरमा देगा। फफीहिमा फजाहिद, ये इतना मकाम है, इतना आप भी सब माँ बाप वाले हैं, किसी के चले गए होंगे, किसी के मौजूद होंगे। मुझे याद है इस रबीउल अव्वल शरीफ को मैं जब 3 बजे 3:30 बजे वापस आता था, मुझे याद है एक मरतबा मैं डहर की घोटकी के इलाके से तकरीर करके 3:30 बजे आया। सख्त सर्दी की रात थी, लेकिन अल्लाह की जात गवाह है सब सोए हुए थे। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, लेकिन मेरे वालिद भी जाग रहे थे, मेरी माँ भी जाग रही थी। रात के 3:30 बजे इकबाल कहते आह किसको होगा अब मेरे आने का इंतजार, कौन होगा अब मेरे न आने से बेकरार, मुद्दत हुई नादिश मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। तो मैंने बचपन में एक मर्तबा कहा था मेरी माँ मुझे रात को डर लगता है, उस दिन से मैं जवान हो चुका हूँ, लेकिन अब जब भी जागता हूँ मेरी माँ जाग रही होती है। मैंने कहा माँ तुझे नींद के झोंके नहीं आते? उसने कहा बहुत सताते हैं, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरी आंख लग जाए, मेरे बेटे को डर न लग जाए। मुद्दत हुई नादिश मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। इमाम इब्न जोजी से किसी ने पूछा इधर मेरी माँ बीमार है और इधर मेरा दिल करता है मैं नफली हज करने जाऊं, फर्जी हज तो मैं कर चुका हूं, क्या मुझे इजाजत है? आपने फरमाया मेरे नजदीक माँ के पांव दबाना नफली हज करने से भी ज्यादा अफजल है। माँ के पांव दबाना नफली हज करने से भी ज्यादा अफजल है। ये मकाम है भाई, इसलिए इन मोहब्बतों को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं कि जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा हो, जिस माँ की गोद में हमने मैं परवान चढ़ी हो, और जिस माँ ने और सहाबी रसूल आए ना हुजूर की बारगाह में, आका मैंने सख्त गर्म पत्थरों पे चलकर अपनी माँ को कांधे पे बिठा के लंबी मसाफत तय की है, क्या मैं अपनी माँ की मोहब्बतों का हक अदा कर दिया? नबी रहमत ने फरमाया माँ जब औलाद की तरफ देख के मुस्कुराती है, हो सकता है उस माँ की एक मुस्कुराहट का हक अदा हुआ हो। माँ जब औलाद की तरफ मुंह करके देख के मुस्कुराती है, हो सकता है उस माँ की एक मुस्कुराहट का हक अदा हुआ हो। भाई ये तो मकाम है। हजरत उमर का दौर है, उमैया अल किनानी एक शख्स है, उसका बेटा किल्लाब है, हजरत उमर की बारगाह में हिजरत करके आए। किल्लाब माँ बाप का इकलौता बेटा था, ये दिल के कानों से सुनने वाली रिवायत है, और ये आंसू बहाने का मकाम है। इस मकाम पर हजरत फारूक आजम की बारगाह में किल्लाब आ गया कि मुझे इजाजत दीजिए मैं जिहाद करने जाता हूँ। फरमाते हैं कि आपके वालिदैन उनके बाप मुमैया अल किनानी और किल्लाब की वालिदा रोकती रही। हजरत उमर को पता न चला, हजरत उमर को इसकी खबर न चली कि माँ बाप ने इसे रोका है। हजरत उमर ने उसे ईरान के इलाकों में जिहाद पे भेज दिया। जब कैसर और किसरा के इलाके फतह हो रहे थे, कहते चंद दिन बीते, जब किल्लाब जुदा हो रहा था ना, उसने कहा अतरुकुमा हुआ खैरुल्ली, मैं जा रहा हूँ जिहाद पर, मैं जिस चीज को बेहतर समझता हूँ करने जा रहा हूँ। चंद दिन बीते, उमैया अपने घर में बैठा है, उसके घर में एक खजूर का दरख्त है, उसकी नजर पड़ी कि एक चिड़िया का घोंसला है, उस घोंसले में बच्चे हैं। चिड़िया अपने नर के साथ कभी उड़ के घोंसले में जाती है, अपने बच्चों से अटकेलियां करती है, कभी उठ के शाख पे बैठ जाती है। उसके पत्तों पर उमैया ये चिड़िया की अपनी बच्चों से मोहब्बत देख के उमैया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा काश आज मेरा बेटा किल्लाब भी मेरे पास होता, जिस तरह ये चिड़िया अपने बच्चों से मोहब्बत कर रही है, काश मैं भी अपने बेटे से ऐसे मोहब्बत करता। कहते उससे जब इश्क ने जोश मारा ना, वो सीधा हजरत उमर के दरबार में चला गया। उसने कहा ला इन तरुद्द अलैया वलदी ला अदअवुन्न लका फी अरफात, उमर अगर मेरा बेटा किल्लाब ना आया ना, याद रखना मैं अरफात के मैदान में जाकर दिल ये बद्दुआ करूंगा, मेरा बेटा जल्दी पलटा दे। हजरत उमर मिजाज शनास थे, समझ गए। जब वाकई की तहकीक हुई तो पता चला किल्लाब माँ बाप को राजी किए बगैर चला गया है, इसलिए बाप रो रहा है। हजरत उमर ने खत लिखा किल्लाब को वापस भेज दिया जाए। किल्लाब जब मदीने पहुंचा, हजरत उमर ने उसे करीब बुला के पूछा
یہ بتاؤ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ اس نے کہا میری آنکھ اس وقت تک نہیں لگتی جب تک میرے ماں باپ نہ سوئے، جب تک میرے ماں باپ کا پیٹ نہ بھرے میں ایک لقمہ نہیں کھاتا، جب تک میں دودھ پیٹ بھر کے ماں باپ کو نہ پلا لوں خود ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ آپ نے فرمایا یہی تیری محبت ہے، تیرے باپ کو محبت تیری تڑپا رہی ہے۔ آپ نے اسے دربار میں بٹھایا، امیہ کو بلایا، امیہ کو کہا بتاؤ امیہ تیرے لیے آج کون سی خوشی کی بات ہوگی؟ اس نے کہا جب سے بیٹا بچھڑا ہے میرے لیے خوشی کی غمی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی، دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ پردے میں چلے گئے، قلاب کو فرمایا وہ بیت المال کی اونٹنیاں کھڑی ہیں، جس طرح اپنے گھر میں دودھ دوہ کے لاتے تھے باپ کے لیے ماں کے لیے ویسے دودھ دوہ کے لاؤ۔ کہتے وہ پیالہ لے کے گیا، اس نے اونٹنی کے تھنوں پہ ٹھنڈا پانی مار کے دودھ کو ٹھنڈا کیا، دودھ دوہ کر حضرت عمر کو دیا۔ اب یہاں ماں باپ کی محبتوں کو دیکھیے، حضرت عمر نے پیالہ اٹھایا، کس کے ہاتھ سے؟ امیہ کے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت عمر امیہ کے قریب گئے اور فرمایا اشرب اللبن، امیہ دودھ پیو۔ اس نے قریب کر کے ایک گھونٹ پیا، اس نے کہا یا ابن الخطاب لا اشم رائحۃ یدی کلاب، اس پیالے سے میرے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے میرے بیٹے کلاب کے ہاتھ اسے لگے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے تو میں نے بلایا تھا، تمہارا بیٹا کلاب واپس پلٹ کے آ گیا ہے۔ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب دونوں ماں باپ کو آپس میں بلایا نا اتنا گر گرا کے روئے کہ ان کے اس منظر کو دیکھ کر مجھ عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے، یہ شفقتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں، خدا را ان کے حقوق میں کبھی بھی غفلت نہ کیا کریں۔ اب تو ان حضرات سے پوچھیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ جاتے اور جب والدہ کا انتقال ہوا قدم رکھنے لگے تو آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ آج کی کریم یہ پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا، بارہا آیا ہوں، آج منظر بدلا بدلا کیوں ہے؟ آواز آئی پہلے ماں زندہ تھی، آپ گھر سے نکلتے تھے ماں مصلی بچھا دیتی تھی اور ہاتھ اٹھاتی تھی اللہ میرا موسیٰ جلال والا ہے لیکن تو رحمان و رحیم ہے، اپنے کرم کا صدقہ جمال کا صدقہ میرے موسیٰ پہ رحمت کا نزول فرمانا۔ فرمایا اب ماں رہی نہیں ہے، اسے نہ کسی نے مصلی بچھایا نہ کسی نے ہاتھ اٹھائے، اب ذرا قدم اٹھانا تو موسیٰ سنبھل کے اٹھانا ذرا۔ بھائی بندہ کام کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں اسے مصیبتوں سے بچا لیتی ہے، اسے بہت بڑے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ لیکن جب ماں باپ چلے جائیں پھر انسان پچھتاتا ہے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، مجھے محبتیں دیتے، مجھے شفقتیں دیتے، الفت سے میرے ساتھ پیش آتے۔ آخری روایت سماعت فرمائیے، مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج بیت اللہ کر رہا تھا، اس کو لکھا کس نے؟ میں حوالے بھی دیتا جاؤں، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے کتب کے اندر خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس اس ٹائم بھی 850 کتاب موجود ہے، 850 کتاب کی اپنی ذاتی لائبریری ہے۔ ایران سے لے کر میرے پاس بیروت تک کے چھاکے عربی اور فارسی میں موجود ہیں، اور ہر مکتب فکر کی کتاب میرے پاس موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، لیکن میں اپنے مسلک کا پکا ہوں، سنی ہوں، نبی پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوں، لیکن ہم ٹٹولتے ہیں تولتے ہیں کہ کون کس نے پانی کے اندر موجود ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے دن رات کی محنتوں کے بعد یہ محسوس کیا ہے جو اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ میں کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک، لنڈی کوتل پاکستان کی آخری سرحد ہے، وہاں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور کے قریب، میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کے قریب 1 سال جمعہ پڑھاتا رہا ہوں۔ بابا کمال شاہ چشتی رحمت اللہ کی بارگاہ میں قصور میں بھی جمعہ میں 2 تقریریں کرتا تھا، لنڈی کوتل سے لے کے کراچی تک، میں شاہ نورانی تک گیا ہوں۔ میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے اپنی کم عمری میں، کم علم میں، کم عملی میں۔ کہیں پر آل کی محبت تو ہوگی، صحابہ کی محبت نہیں ہوگی، کہیں پہ صحابہ کی محبت ہوگی تو آل کی محبت نہیں ہوگی، لیکن سنی کے سینے میں دونوں کی محبتیں موجود ہیں۔ ہم صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں حضرت عمر کی محبت بھی ہے، سیدہ فاطمہ کا وقار بھی ہے، ہمارے ہاں اماں عائشہ صدیقہ کا مقام بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں حسنین کریمین کی محبت بھی سینے میں جوش مارتی ہے۔ اس لیے امام محب طبری نے المجاز النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر دیکھ کر حضرت علی کو مسکرا پڑے۔ آپ نے پوچھا بھائی ابو بکر کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کر۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا نبی رحمت نے فرمایا
फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसके लिए अली चिट्ठी लिख के देंगे, जिसे अली जमानत देगा। फादाही का अली बिकौली अबी बकर, मौला अली ये बात सुन के मुस्कुरा पड़े, फरमाया भाई अबू बकर अगली बात शायद आप भूल गए हैं, हुजूर ने ये भी फरमाया था अली चिट्ठी भी उसे देना जो अबू बकर से भी मोहब्बत करता होगा। इसलिए ये मोहब्बत लाजिम है, सिद्दीक की मोहब्बत नहीं तो अली की मोहब्बत भी नाकारा है। अगर अली की मोहब्बत है सिद्दीक की मोहब्बत नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इमाम कहते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हम नबी की आल से भी नबी के सहाबा। मेरी बात रिवायत सुनिए, हजरत मालिक बिन निरार कहते हैं इमाम इब्न जोजी ने लिखा है, कहते मैं बैतुल्लाह का हज कर रहा हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, आवाज आ रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं इस आवाज के दिल नशीन अंदाज को सुन के मैंने कहा अल्लाह क्या तेरा कोई ऐसा बंदा भी ऐसा होगा बदबख्त जिसका तूने आज हज कबूल नहीं किया होगा। रात को सोया तो मुझे कोई ख्वाब में कह रहे हाँ मालिक बिन दिनार एक शख्स है जिसका हमने हज कबूल नहीं किया। मैंने ख्वाब में पूछा वो कौन है, फरमाया खुरासान का शहर बल्ख है, बल्ख का एक मुकीम है रहने वाला, उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून, हमने उसका आज भी हज कबूल नहीं किया। कहते सुबह जब मैं जागा तो मैं बल्ख वाले शहर वाले लोगों को मिला, काफिले को। मैंने पूछा मोहम्मद बिन हारून तुम में कोई है? उसने कहा वाह वो तो अल्लाह का वली है, वो तो दिन को रोजा रखता है, रात को कयाम करता है, उसके तो माथे पे सज्जू के निशान है। मैंने सोचा रात कहा गया हज कबूल नहीं और ये उसे अल्लाह का वली कह रहे हैं, मैंने शायद ख्वाब में धोखा खाया है। दूसरी रात सोया तो फिर ख्वाब आया, शक ना करो वही मोहम्मद बिन हारून है जिसका हमने हज कबूल नहीं किया है। कहते मैं फिर सुबह गया, मैंने पूछा उसका पता बताओ। लोगों ने कहा कि वो कहीं महवे इबादत होंगे। मैंने क्या देखता हूँ एक शख्स को, उसका सीधा बाजू कटा हुआ है, सीधे बाजू के अंदर रस्सी बांध के उसने गले में लटका रखी है, सीने की हड्डी में सुराख कर रखा है और वो नमाज की हालत में है। मेरे कदमों की आहट सुनी तो जल्दी से नमाज खत्म के पूछा मसमुक क्या नाम है, क्यों आए हो? मैंने कहा तेरे बारे में मैंने ख्वाब देखा है। कहते ये सुनना था, उसकी धार निकली। उसने कहा या फारिजल हम व या काशिफल गम या मुजीबत दावत, ए उम्मीदों के बल्लाने वाले, मार दिया। मैंने थप्पड़ मारकर माँ के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ मैंने माँ को जलते तनूर में डाल दिया। मेरी माँ चीखती रही चिल्लाती रही लेकिन मुझ बदबख्त को रहम ना आया। जब मेरी बीवी ने देखा मुझे पकड़ के कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। शाम ढली, मुझे होश आया, मैंने कहा इफ्तह बाब, दरवाजा खोल। उसने कहा ना नहीं खुल सकता। मैंने पूछा क्यों सख्ती कर रही हो? उसने कहा तूने खता इतनी बड़ी की है कि तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। मैंने पूछा वो क्या? कहते तूने अपनी माँ को जलते तनूर में डाल दिया। कहते मेरा जब नशा उतरा मैंने जज्बात में आके दरवाजा तोड़ के जब बाहर निकला मैंने क्या देखा, मेरी माँ जल के कोयला हो चुकी है। जिस तनूर में मैंने माँ को डाला था मेरी माँ के गोश्त के भुनने की बदबू उठ रही थी। कहते जिस हाथ से मैंने माँ को थप्पड़ मारा मैंने बाजू काट दिया, उसको रस्सी बांध के गले में लटका लिया, सीने की हड्डी में सुराख निकाल रखा है। 40 साल का अरसा हो गया है। मैं हर साल हज भी करता हूँ, उम्रा भी करता हूँ, दिन को रोजा भी रखता हूँ, रात को कयाम भी करता हूँ, लेकिन अल्लाह हर साल मेरा हज रद्द कर देता है। अल्लाह ना मेरा सजदा कबूल करता है ना मेरा हज कबूल करता है। हर साल जैसे तुझे ख्वाब दिखाया गया किसी ना किसी को ख्वाब दिखाकर कह दिया जाता है निकल जाओ बदबख्त, हमने तेरा हज कबूल नहीं किया है। मैं रोता हूँ चिल्लाता हूँ लेकिन मेरा हज कबूल नहीं होता। भाइयों 40 साल का अरसा ये दिन रात इबादतें करना, लेकिन एक माँ बाप माँ के साथ जुल्म करने की इतनी बड़ी सजा है। इसलिए इस मकाम को समझा करें। आज दोस्त मिस कॉल मारे तो बच्चा दौड़ के जाता है, बूढ़ा बाप पानी के लिए बुलाता भी रहे तो बेटा तवज्जो नहीं करता है, बीवी कह दे तो कपड़ों के अंबाल लग जाते हैं, लेकिन माँ देखती भी रहे खुशी के दिन तो इंसान को समझ नहीं आती। काश आज खुशी के दिन में मैं सबसे बड़ी खुशी अपनी माँ को दूं, क्योंकि जब मैं छोटा था सबसे बड़ी खुशी मेरी माँ मुझे देती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जिंदाबाद। इसलिए भाइयों आज भाई मुजम्मिल सईदी के घर पर जो मैंने कलिमात अर्ज किए हैं अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे और मैं खलूस दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनको शिफा कुल्ली अता फरमाए, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फरमाए। भाई मुदस्सिर, भाई मुजम्मिल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पे है, लेकिन एक बात ज़हन नशीन की लीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ जब इंसान पे आयद होती हैं ना अल्लाह ताला किसी भी शख्स की बख्शिश का जरिया बना देता है। देखें म्यार है, एक शख्स के पास करोड़ों की मालियत है लेकिन है गरीब, बच्चा एक नहीं है,
اور ایک غریب شخص ہے اس کے 10 بچے ہیں. آپ نے بھی قدرت کی تقسیم دیکھی ہے. جس کو اللہ نے کروڑوں کے دیے اسے بچہ نہیں دیا, اور جس کو اللہ نے جھوپڑی دی ہے اسے 10 بچے دے دیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخشے گا, سبب بنائے گا. جو امیر ہوگا بچے نہیں ہوں گے, وہ کسی غریب کو پالے گا, اللہ اس کی بخشش کر دے گا. اور جو غریب ہے اس کے پاس اسباب نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو پالے گا, اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. تو یہ گھر والوں پہ محبتوں سے پیش آنا, گھر والوں کے حقوق پورے کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی ہمت کی بات ہے. نبی رحمت نے شخص کو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کر گھر والوں پہ خرچ کرنے والا یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کا حبیب ہوگا. القاسب حبیب اللہ. بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے سر پہ. اللہ ان کو قوت دے, ہمت دے, اللہ ان کو صحت یابی بھی عطا فرمائے, اللہ ان کو خضری عطا فرمائے, ان کے گھر پہ اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ان کے والدین مرحومین اللہ ان کی مرقدوں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. مصری اسد اللہ صاحب آپ کی ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے بہت اچھے انسان تھے. میں نے نہیں دیکھا, لیکن جسے دنیا بجا کہے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. جس پہ اللہ کی مخلوق خوش اس پہ خدا بھی خوش ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی اچھائیاں آپ سب کی زبان پہ زد و عام ہیں, یہ آپ کی اچھے اظہار یقیناً ان کے لیے بخشش کا سبب ہیں. میں دعا گوں اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.